Hey guys, welcome back to my channel. It's Play with Science and today's topic is the Lost Spring, English class 12th, chapter number 2, Hornbill book of your course. So definitely this chapter is coming in term 1, like the board 1, that will be happening in November or December. So let's start this chapter, and before moving on to the chapter, subscribe to my channel, hit the bell icon and give a huge like if you like my content. So the chapter name is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. About the author कौन है हमारे इसके? Enis Jung, who was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Her parents were both writers. Okay. She received her education in Hyderabad and in United States of America. That what is United States of America? It's USA. Her parents were both writers. Enis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of a Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. So इधर basically इन्होंने childhood बच्चों के बारे में बात करी है and main उसका focus यहीं पे है. Okay, so let's start. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Scrounging is something we say finding. A new word for finding. So finding for gold. Gold here signifies not the sona, but the something which is giving us very pleasure. Like एक beggar के लिए gold is food और money. ठीक है. एक middle class के लिए gold is house. ओके ये सब कुछ. तो इधर गोल्ड इसके लिए द साहिब के लिए एनकाउंटर इधर सी या लुक. ठीक है. साहिब के लिए एवरी मॉर्निंग फाइंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड. तो इधर गोल्ड सिग्निफाइज द मे बी rupee in the garbage or food in the garbage, something like that. Okay, so Sahib left his home long ago. Said admits the green field of Dhaka, his home, is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is, I'm sorry, there is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Hey, yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. After months of knowing him, I asked him his name, Sahib A. Elam. He announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe. So, what is the meaning of Sahib A. Elam, the Lord of Universe? He would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents,
He roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? So, chappals here is slippers. It is slippers. I ask one. My mother did not bring them down from the shelf. My mother did not bring down from the shelf. He answers simply, even if she did, he will throw them out, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. ओके सो यहाँ तक बहुत ही इजी है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं लग रहा मेरे को. आई wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Poverty is गरीबी. Poverty is गरीबी. So यहाँ पर इन्होंने ये बात करी है कि I'll just show you it from the starting. So यहाँ पे इन्होंने ये बात करी है कि सबसे पहले तो इन्होंने ऑथर की बात करी है, फिर इन्होंने यहाँ बोला है कि ऑथर ने अपनी बात शुरू करते हुए बोला है, मीन्स एंस जंग ने, तो वो बोलती है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ठीक है, तो वो बोलती है कि यहाँ पे उसने उससे पूछा साहेब से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्होंने फिर सिचुएशन बताई है कि वो उसे देख रही है कि वो गार्बेज डंप्स में से कुछ निकाल रहा है, स्क्राउच कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है फॉर हिज गोल्ड. गोल्ड हियर सिग्निफाइज द फूड और ₹1 coin just like that, okay, not the real वाला गोल्ड. ठीक है, फिर उसने बताया कि वो इतना गरीब ऐसा क्यों है, उसने उसका फ्लैशबैक बताया, उसका हिस्ट्री बताया उसने. तो बोला कि साहेब ने पहले अपना अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. ठीक है, तो फिर वो कहती है कि जो ग्रीन फील्ड्स थे ढाका के, वो हाँ तो ग्रीन फील्ड्स थे ढाका के, वहां से उसका होम लाइक एक डिस्टेंट मेमोरी सा बन गया था. ठीक है, तो वहां पे बहुत स्टॉर्म्स आई जिन्होंने उसके फील्ड्स होम सब कुछ हटा दिया, उसके मम्मा ने उसको बताया. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वो कहते हैं कि they came from there to the city to find their gold. Gold अब मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत बार what gold signifies. तो सिटी, बिग सिटी जहाँ पे आजकल वो रह रहा है, अब कहाँ रह रहा है वो उसने स्पेसिफाई नहीं करा, मतलब आई मीन कि जमीन पे रह रहा है या घर में रह रहा है. डेफिनेटली अगर वो गार्बेज डंप में से अपना गोल्ड ढूंढ रहा है तो किसी गरीब स्टेट में ही रह रहा होगा वो. तो वो कहता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने को. तो ऑथर कहती है कि तुम स्कूल जाओ, बट बाद में रियलाइज करती है कि कितनी अजीब सी बात बोल दी है, स्कूल जाओ. अभी वो यार पैसे ढूंढ रहा है, मैंने तो मुंह पे बोल दिया ना स्कूल जाओ, तो कैसे जाए वो स्कूल, उसके पास पैसे तो नहीं है, ना ही उसका स्कूल कोई है नेबरहुड में. तो क्या हुआ कि फिर वो बोलते हैं कि वो साहिब रिप्लाई करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, और अगर हो जब यहाँ पे बन जाएगा तो मैं वहां पे चले जाऊंगा. तो फिर औरत कहती है कि अगर मैं स्कूल बना हूँ तो तुम आओगे, मतलब जोकिंग, जस्ट किडिंग वाला होता है ना, जस्ट किडिंग और जस्ट जोकिंग ऐसे वाले में. तो वो बहुत खुश हो जाता है एंड वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मतलब यस डेफिनेटली. तो फिर वो बोलती है, फिर सिचुएशन बताते हैं कि कुछ दिनों बाद वो मेरे पास भागते हुए आता है और वो मुझसे पूछता है कि तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया. तो मैं उसे फिर ऑथर उसे बोलती है एक एम्बैरेस से वे में कि स्कूल बनाने को बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसे एकदम से तो नहीं बन जाता ना. तो वो कहती है, वो बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया उसे जिसको वो नहीं मीन करती थी. उसने एक उसे फालतू की एक्साइटमेंट दी थी, मतलब उसको एक भरोसा दिलवा दिया कि यस आई विल बिल्ड अ स्कूल. या सो उसके बाद क्या होता है कि जो वो हाँ तो वो बोलती है कि उसे बहुत एम्बैरस फील होता है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसको वो मानती ही नहीं थी. ठीक है,
तो ऐसे तो फालतू के प्रोमिसेस बहुत लोग कर देते हैं ना। तो क्या होता है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई हैज दिस नेम, तो उसने अपना पूरा नाम बताया, साहिब एलम। पर उसको उसका अपने नाम का मतलब नहीं पता था, बट ऑथर को पता था, और उसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट वो उसे बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उसका तो सिचुएशन ज्यादा था, उस हिसाब से उसके नाम का मतलब एक ऐसा मतलब था जो बहुत ही मुश्किल था बिलीव करने के लिए। डेफिनेटली अगर वो नाम का मतलब मेरा होता तो मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता वो बिलीव करने में कि देखो मेरी सिचुएशन क्या है, और वैसे तुम कह रहे हो मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन ना, दैट इज नॉट द केस। सो क्या बोलते हैं कि वो कुछ लोगों को देखती है अपनी बेयर फुट बॉयज को अपना देखती है, तो उसमें से एक लड़का कहता है, तो वो पूछती है ऑथर कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रही हो, दैट इज स्लीपर्स क्यों नहीं, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स और स्लीपर्स। तो एक बच्चा उसमें से रिप्लाई करता है कि मेरी मम्मी ने उनको शेल्फ से वो नीचे नहीं लेके आई। ठीक है। तो दूसरा बच्चा उसी के में कमेंट करता है कि अगर वो लाती तब भी तुम नहीं पहनते, उसे फेंक देते। ठीक है। और वो बच्चे मानते उसके खुद के जूते मैच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है। और जब ऑथर से कमेंट करने लगे इतने में उसने अपने पैर शफल कर दिए और कुछ नहीं बोला। और तीसरा बंदा उसमें बोलता है आई वॉन्ट शूज। ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ये लैक ऑफ मनी नहीं है, बट एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का, और ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। तो वो वंडर करती है कि क्या सिर्फ एक यही एक्सक्यूज है टू एक्सप्लेन कि आप एक स्टेट ऑफ पॉवर्टी से गुजर रहे हो। ठीक है। सो इसके आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस, होप यू लाइक माय कंटेंट, गिव अ huge like, press the bell icon, and subscribe to my channel. Okay, thank you, have a nice day.